کے تعلق سے کون کون سا موضوع اٹھایا جائے؟ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی. شعر ہے کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. مسلم نوجوان چاہے ان کا تعلق مرد سے ہو چاہے عورت سے ہو، دور حاضر کی جو مشکلات ہیں، جو مشکلیں ہیں، ان مشکلات سے یہ گھرے ہوئے ہیں. بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں. ان میں سے ایک اہم سبب کہ دین بیزاری. مسلمان ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، وہ دین اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دنیاوی تعلیم میں آگے ہیں اور دین میں اس قدر پیچھے ہیں کہ سائنس کے مطابق مسلمان مرد جو ہیں چاہے عورت ہیں، سائنس کے مطابق دین کو پرکھتے ہیں. سائنس جسے اچھا کہتی ہے، جسے دین کہتی ہے، اسے وہ دین سمجھتے ہیں، اور جسے سائنس جہاں پر عاجز آ جاتی ہے اس دین کو انکار کر دیتے ہیں. جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ سائنس اسباب پر بحث کرتی ہے اور قرآن و حدیث کا تعلق وحی الہی سے. لہذا آج کے معاشرہ میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو عقیدے کی خرابی، عقیدے میں بگاڑ، غیبیات کے تعلق سے جتنی احادیث ہیں، قبر کا معاملہ ہو، میدان محشر کا معاملہ ہو، جنت و جہنم کا معاملہ ہو، مسلم نوجوان مسلم طبقوں میں سے ایک ایسا طبقہ ایسا ہے، نوجوان کا طبقہ ایسا ہے جو کھلم کھلا سائنس کی بنیاد پر انکار کر دیتے ہیں کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے. آج ضرورت ہے کہ انہیں توحید بتایا جائے اور انہیں دین سمجھایا جائے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور سب سے پہلے توحید کا درس دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے اس وقت کو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا جرم ہے، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں اور مزید توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، معمولی سی کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ. کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، معمولی سی نہ دکھنے والی چیز کوئی ہو، اور وہ چیز اگر کسی پہاڑ میں موجود ہے یا پھر آسمان میں موجود ہے یا پھر زمین کے کسی حصے میں موجود ہے، یاتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لائے گا. تو آیت واضح کر دی ہے کہ دور حاضر کہ جو مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کی جو مشکلات ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، انہیں عقیدے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لہٰذا انہیں دین بتایا جائے، انہیں دین پڑھایا جائے، انہیں عقیدے کی تعلیم دی جائے. نماز کے تعلق سے اسلام نے کیا کہا؟ اولاد کو دینی تربیت دینے کے تعلق سے لہذا ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے. اسلام دنیاوی تعلیم دینے سے روکتا نہیں ہے، لیکن پہلے وہ مسلمان ہو، اسلام کے دائرے میں دنیا کے جس ترقی میں اور جس منازل میں پہنچنا چاہے وہ پہنچ سکتا ہے. اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن پہلے آپ انہیں مسلمان بنائے. تربیت کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاة.
अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह। इस हदीस का ताल्लुक खास माँ बाप से, वालिदैन से कहा जा रहा है कि मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, कि जब आपके बच्चे, जब आपकी बच्चियां 7 साल के हो जाए, उन्हें नमाज का हुक्म दीजिए। बेटे नमाज पढ़, उन्हें सजदा करने का तरीका बताइए, उन्हें रुकू करने का तरीका बताइए, उन्हें क़ियाम करने का तरीका बताइए, उन्हें नमाज की मोहब्बत उनके दिलों में डालिए, नमाज तरीक़ा रसूल के मुताबिक उन्हें सिखाइए। ये माँ बाप को कहा जा रहा है। मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, 7 साल के बच्चे हो जाए तो उन्हें नमाज के लिए, उन्हें नमाज पर आमादा कीजिए, नमाज का हुक्म दीजिए। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और आपके बच्चे 10 साल के हो गए हैं, आपकी बच्चियां 10 साल की हो गई हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो नमाज ना पढ़ने पर मारिए, नमाज ना पढ़ने की वजह से। आज ट्यूशन ना जाने पर मारा जाता है, दुकान ना जाने पर मारा जाता है, दुनियावी काम और घर का काम काज सही से न करने पर मारा जाता है, लेकिन नहीं मारा जाता है तो तरबियत के लिए नहीं मारा जाता है, उन्हें नहीं उठाया जाता है तो नमाज फज्र के लिए नहीं उठाया जाता है। ये एक अहम वजह है कि जिसकी वजह से मुस्लिम नौजवान चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, दीनी बेजारी के शिकार है। दूसरा अहम वजह बेमकसद जिंदगी। मुस्लिम नौजवान जिनका ताल्लुक लड़कियों से हो या फिर लड़कों से हो, बेमकसद जिंदगी गुजर रही है। होटलों में उनकी जिंदगी गुजर रही है, कहवा खानों में उनकी जिंदगी गुजर रही है, गलियों और कूचों में उनकी जिंदगी गुजर रही है, अय्याशी करने में उनकी जिंदगी गुजर रही है। मोबाइल में इस दौर के नौजवान बर्बाद हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल में इनकी जिंदगी गुजर रही है, इनके शब रोज गुजर रहे हैं। होटलों में इनका खाना होता है, होटलों में इनका रहना सहना होता है, होटलों में इनकी सारी मस्ती होती है। हुए इस कदर मुहज्जब कभी घर का मुंह ना देखा। अकबर इलाहाबादी ने तंज करते हुए कहा था कि हुए इस कदर मुहज्जब कभी घर का मुंह ना देखा, कटी उम्र होटलों में मरे हस्पताल जाता। बेमकसद जिंदगी, बेमकसद जिंदगी। जबकि एक मोमिन की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उनके शब और रोज कैसे होने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरत अल-मोमिनून की इब्तिदाई में फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, तहक़ीक़ के ईमान वाले कामयाब हो गए, तहक़ीक़ के अल्लाह पर ईमान लाने वाले कामयाब हो गए। ये ईमान वाले कामयाब हो गए, ये कौन है, इनकी सिफात क्या है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों को खुशू खुशू के साथ पढ़ते हैं, अपनी नमाजों की पाबंदी खुशू खुशू के साथ करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए, वो अल्लाह को मानने वाले कामयाब हो गए। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, जो गुनाह के कामों से एराज करते हैं, जो गुनाह की जगहों से एराज करते हैं, जो बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बेमकसद जिंदगी। एक मुसलमान की जिंदगी कैसे होनी चाहिए। मुस्लिम नौजवान चाहे उनका ताल्लुक लड़के से हो चाहे लड़की से हो, उनकी जिंदगी कैसे होनी चाहिए। मकसद जिंदगी है कि आखिरत मतमहे नजर रहे, आखिरत सामने रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को नसीहत करते हुए फरमाया था। वो नसीहत क्या थी। हदीस वअन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाल अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमनकिबी फ़क़ाल कुन फ़ी दुनिया कअन्नका ग़रीब औ आबिरु सबील व कान इब्न उमर यक़ूल इज़ा अमसैत फ़ला तंतदिरिस सबह व इज़ा अस्बहत फ़ला तंतदिरिल मसा व ख़ुज़ मिन सिहतिका लिमरदिक व मिन हयातिका लिमौतिक। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब रिक़ाक़। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फरमाया कि अब्दुल्ला के इब्न उमर कुन फी दुनिया कान्नका गरीब औ आबिरु सबील, दुनिया में तुम्हारी जिंदगी की दो ही हैसियत होनी चाहिए। तुम दुनिया में कैसे रहो
रहने का तरीका सीख लो। और बहुत ही अहम हदीस है, जो मुसलमान चाहते हैं कि दुनिया में रहते हुए मैं अपनी आखिरत को संवारूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नुस्खा यहाँ से लेकर के जाइए। कहते हैं अब्दुल्ला, दुनिया में तुम्हारी जिंदगी की हैसियत वही होनी चाहिए, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब, तुम दुनिया में इस तरह से रहो गोया कि तुम मुसाफिर हो। जिस तरह आदमी सफर करता है तो क्या करता है, सामान्य सफर कम से कम लेकर के जाता है। जब तक आदमी मंजिल मकसूद तक पहुंचता नहीं है, सफर में बीच में कहीं ठहरता नहीं है, आराम नहीं करता है, बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। बहुत ही बेहतरीन नुक्ता है इस हदीस में जो पेश किया गया है, इसको यहां से लेकर के जाइए कि जिस तरह से आदमी सफर करता है, सफर में कम से कम सामान लेकर के जाता है, वो जब तक मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं जाता है बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। और जब सफर में भी जब टिकट कंफर्म ना हो तो और परेशानी रहती है, और बेचैनी रहती है। उसी तरह से एक मोमिन की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी मुसाफिर की तरह होनी चाहिए। ये आखिरत कोई तैयारी और जन्नत में जाने के लिए सफर कर रहा है। जिस तरह से एक मुसाफिर मंजिल मकसूद तक पहुंचने से पहले तक बेचैन और बेकरार रहता है, मंजिल में पहुंचने के बाद सुकून पाता है, उसी तरह से एक मुसलमान दुनिया के अंदर मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारता रहे, आखिरत की तैयारी में सफर करता रहे, सुकून और इत्मीनान दुनिया में हासिल करने की कोशिश ना करे, यहां तक के नेकियां करे, मौत हो जाए और उनका ठिकाना जन्नत में हो, जो उनके एक मोमिन की मंजिल, जो एक मोमिन के लिए मंजिल मकसूद है। कितना अहम नुक्ता हदीस के अंदर बयान किया गया। दूसरी हैसियत, कुन फी दुनिया का अन्न का गरीब और आबिर सबील, मुसाफिर या फिर तुम अजनबी, का अन्न का गरीब, तुम दुनिया में इस तरह से रहो गोया कि तुम अजनबी हो। आदमी ऐसे शहर में जाता है जहाँ कोई पहचान वाला ना हो, और ना पहचान वालों से कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास मोबाइल हो, और ना हम उनकी ज़बान को जानते हैं। वहाँ पर अगर हम जन्नत नुमा महल में हों फिर भी घर वालों की याद आएगी, अपनों की याद सताएगी, बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा कि मैं जानने वालों में कैसे जाऊं, अपनों में कैसे जाऊं ताकि मुझे सुकून हासिल हो। यही मामला है कि ये दुनिया गोया के दुनिया एक अजनबी वाली जगह है, यहाँ पर इस तरह रहना गोया कि मुझे यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं है, और मेरा मकसद, मेरा असली घर जन्नत में जाना है, जन्नत की नेमतों से मालामाल होना है। तो अब्दुल्ला बिन उमर, कुन फी दुनिया का अन्न का गरीब औ आबिर सबील, दुनिया में इस तरह रहो गोया कि तुम अजनबी हो या तो तुम मुसाफिर हो। उसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इदा अमसैत फला तंतदिर सबाह, शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो, वइदा असबहत फला तंतदिर मसा, और जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, अल्लाह को राजी करके सुबह हो या शाम रहा करो। वह खुद मिन सेहती का ले मर्दिक, बीमारी से पहले जो अल्लाह ने सेहत से नवाजा है उस सेहत को गनीमत जानिए, अल्लाह को राजी करने वाले अमल कीजिए। वमिन हयाती का ले मौती के, और मरने से पहले जो जिंदगी रब ने बख्शी है जन्नत में जाने के लिए जिंदगी को लगाइए, जहन्नम से बचने के लिए जिंदगी को लगाइए, कब्र की हौलनाकी और मैदान महशर की खतरनाकी से बचने के लिए जिंदगी को लगाइए। तो दौरे हाजिर के नौजवान मुस्लिम लड़के या फिर लड़कियों का हाल यह है कि बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी वजह, मगरबी तहजीब का दिलदादा। दौरे हाजिर की मुश्किलात ये है मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए कि वो मगरबी तहजीब के दिलदादा हैं, उनके आइडियल कोई हीरो है, उनके आइडियल कोई हीरोइन है, उनके आइडियल कोई खिलाड़ी है। गंवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, बकौल इकबाल के गंवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमाने हमको दे मारा, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरी काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। अल्लामा इकबाल ने कहा था नौजवानों को जगाने के लिए कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में।
لہذا مغربی تہذیب کے دل دادا دور حاضر کے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس قدر ہیں کہ طریقہ رسول اس کی زندگی سے غائب ہے. ان کے آئیڈیل کوئی ہیرو ہے, کسی ہیرو کے بارے میں پتہ کیا جائے, پوچھا جائے, وہ بتا دیں گے کہ فلاں ہیرو فلم دنیا میں کب قدم رکھے ہوئے ہیں, فلاں ہیرو کی کتنے فلمیں ہٹ ہوئی ہیں, کتنے فلمیں فلاپ ہوئی ہیں, فلاں کھلاڑی کتنے چوکے ہیں, کتنے چھکے ہیں, کتنے انہوں نے شتک جمائے ہیں, یہ ساری چیزیں بتا دیں گے. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نہیں معلوم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں معلوم ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں معلوم ہے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا جائے آپ کیا جانتے ہیں؟ بتائیں گے نہیں معلوم ہے. میرے استاد محترم شیخ عبدالعظیم عمری مدنی حافظہ اللہ دوران تقریر فرما رہے تھے کہ میں سمر اسلامی کورس جو 15 دن کا کورس ہوتا ہے جس میں اکثر اسکول کے طلبہ ہوتے ہیں, ایگزام لے رہا تھا, تو میں نے سوال کیا تھا کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں اور کون کون؟ تو ایک نوجوان لڑکے کا جواب تھا خلفائے راشدین 4 ہیں. کہا کون کون؟ کہا ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی. یہ رونے والی بات. خلفائے راشدین ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی دور حاضر کے مسلم نوجوان کی یہ تعلیمی حالت ہے, یہ دینی حالت ہے. میرے بھائیوں, صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی تھی. ہم نے فخر و غرور سے کہا دیا کہ میرا آئیڈیل فلاں ہیرو ہے, میرا پہننا فلاں ہیرو کی طرح ہے, میرا چلنا فلاں ہیرو کی طرح ہے, میرا سونا فلاں ہیرو کی طرح ہے, میرا ہیئر اسٹائل فلاں ہیرو کی طرح ہے. صحابہ کرام کی قربانی کو ہم نے بھلا دیا. کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن جوزی رحمہ اللہ صفۃ الصفوہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ خباب ما لقی من المشرکین, ایمان لانے کی پاداش میں, طریقہ رسول کو اپنانے کی پاداش میں آپ نے مشرکین سے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ذرا ان تکلیفوں کے بارے میں ہمیں بتائیے. مسلمانوں, ہمیں دین, ہمیں قرآن بس پیدائشی طور پر مل گیا ہے, اسی لیے ہماری نظروں میں قرآن و حدیث کی اہمیت نہیں ہے. کہتے خباب ذرا اس ایمان لانے کی پاداش میں جو تکلیفیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتائیے. کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین انظر الی ظہری, میری پیٹھ کو دیکھ لیجئے. پیٹھ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھول دیتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فواللہ ما رأیتک اليوم, خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ نے اتنی پٹائی کھائی تھی, اتنی پٹائی کھائی تھی کہ پیٹھ کی حالت اور پیٹھ کی شکل بدلی ہوئی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم ایسی پٹی ہوئی پیٹھ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے. اور اس کے بعد خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین معاملہ کیا تھا جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا. مسلم نوجوانوں ذرا غور سے سنیے. کہتے ہیں جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا, اپنا نمونہ بنایا, اپنا اسوہ بنایا کہ میری زندگی گزرے گی تو طریقہ رسول کے مطابق گزرے گی, تو اے امیر المومنین اوقد لی نارا فما اطفاؤها الا ودک ظہری, اے امیر المومنین آگ جلائی جاتی اور جب آگ شعلہ بار ہو جاتی, آگ مکمل طریقے سے جب تپش میں شدت اختیار کر جاتی, میرے پیٹھ ننگی کر دی جاتی تھی اور ننگی پیٹھ کو آگ کے اوپر رکھ دی جاتی تھی. اے امیر المومنین میرے پیٹھ سے چربی پگھل کر کے وہ چربی آگ کو بجھا دیتی تھی. اس کے بعد بھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑا. اس کے بعد بھی میں نے آمنہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈیل بنانے سے پیچھے نہیں ہٹا. مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیوں, ہم نے آسانی سے یہ کہہ دیا میرا آئیڈیل فلاں ہے, میرے زندگی کا آئیڈیل فلاں ہے, میرے فلاں کا آئیڈیل فلاں ہے. صحابہ کرام کی قربانی کو ہم نے بھلا دیا. ایک حدیث سے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل کو کس طرح سے صحابہ کرام نے اپنایا تھا اور کتنی آسانی سے ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کو سمجھتے ہیں. وعن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा सल्ला बिन्नास यखिरु रिजालु मिन क़ामतिहिम फ़ी सलाति मिन अल-ख़सासा हत्ता तक़ूल अल-आराब हाउलाई मज्जानीन औ मज्जानून फ़इदा सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसरफ़ा इलैहिम फ़क़ाल लौ तअलमून मा लकुम इंदल्लाह ला अहबब्तुम अन तज़दादू फ़ाक़तन व हाजा क़ाल फ़ुज़ाल व अना यौमइज़िन मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब ज़ुहद। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है जैसा कि मैंने पढ़ दिया है। रावी हदीस हज़रत फ़ुज़ाल बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बना चुके सहाबा किराम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के तरीके को अपनाने की मोहब्बत में घर बार को छोड़ दिया है, मक्का को छोड़ दिया है। उन्हें इतना मारा गया है, कमजोर हुए हैं, मक्का छोड़ करके मदीना में असहाबे सुफ़ा जिन्हें कहा जाता है मस्जिद नबी से मुत्तसिल एक चबूतरा बना हुआ है, वहां आकर के रह रहे हैं। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाया है, किसी और हीरो को आइडियल नहीं बनाया है, किसी और शख्सियत को आइडियल नहीं बनाया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाने की वजह से मक्का में उन्हें मारा गया है, मक्का में उन्हें पीटा गया है, मक्का में उन्हें घसीटा गया है। माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया है, बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया है, चचा ने उन्हें घर से निकाल दिया है, मक्का छोड़ने पर मजबूर हैं, मदीना में कसम फुर्सी वाली जिंदगी गुजर रही है। हालत क्या है? कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा सल्ला बिन्नास यखिरु रिजालु मिन क़ामतिहिम फ़ी सलाह। हदीस आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे हैं। ईमान देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की मोहब्बत देखिए। नमाज पढ़ रहे हैं, क़ियाम में है, इस कदर कमज़ोर हो गए हैं। यखिरु रिजालु मिन क़ामतिहिम फ़ी सलाह, क़ियाम खड़े होने की ताकत नहीं है, बेहोश होकर के गिर जा रहे हैं। तरीक़े रसूल को अपना आइडियल बनाया हुआ है। जिस्म कमजोर हो चुका है लेकिन ईमान मजबूत है, जिस्म कमजोर हो चुका है लेकिन तरीक़े रसूल को दिल में सबसे ज्यादा जगह दिए हुए हैं। नमाज में खड़े हैं, नबी के पीछे बेहोश होकर के गिर जा रहे हैं, उनके अंदर खड़े होने की सकत नहीं है। हमारे पास खाना इतने ज्यादा है, इतना खा लेते हैं कि सोते हैं तो नमाज के लिए उठने की सकत नहीं रहती है, ताकत नहीं रहती है। वो सहाबा किराम है, इस कदर भूखे हैं, नमाज में खड़े होने की सकत नहीं है, बेहोश होकर के गिर जाते हैं। अरबी कहते थे ये लोग पागल हो गए हैं, मजनू हो गए, हालांकि पागल और मजनू नहीं थे। हाँ, तरीक़े रसूल ने उन्हें मजनू बना दिया था। वो जान चुके थे अगर मरने के बाद जन्नत में जाना है, अगर मरने के बाद कब्र की तन्हाई में आराम पाना है, वो जान चुके थे कि अगर मरने के बाद जहन्नम से बचना है तो सिर्फ एक ही तरीका है कि जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाया जाए, जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा और आइडियल बनाया जाए। वो जान चुके थे ये दुनियावी मुसीबत तो गुजर जाएगी, आखिरत की मुसीबत नहीं गुजरने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद उन्हें तसल्ली देते थे, और तसल्ली देते हुए क्या फरमाते थे? मेरे सहाबा, लौ तालमून मा लकुम इंदल्लाह लहबब्तुम अन तज़दादु फ़ाक़तन व हाजा। मेरे सहाबा, अगर तुम जान लो कि दीन की मोहब्बत में, तरीक़े रसूल को अपनाने की मोहब्बत में, मुझे आइडियल और नमूना बनाने की मोहब्बत में तुम लोगों ने जो परेशानियां उठाई हैं, घर बार को छोड़ा है, तिजारत को छोड़ा है, मालो असबाब को छोड़ा है, बिजनेस को छोड़ा है, माँ बाप को छोड़ा है, मक्का छोड़ने का गम है, माँ बाप को छोड़ने का गम है, मेरी मोहब्बत में छोड़ा है, दीन की मोहब्बत में छोड़ा है, इस्लाम की मोहब्बत में छोड़ा है, जन्नत में जाने की मोहब्बत में छोड़ा है। अगर इन वजह से छोड़ने की वजह से जो परेशानियां उठा रहे हो, इन परेशानियों के उठाने की वजह से अल्लाह ने कितना सवाब लिखा है, अगर जान लोगे तो जिंदगी भर तुम मोहताज ही रहना पसंद करोगे, जिंदगी भर तुम परेशान ही नबी की मोहब्बत में रहना पसंद करोगे। हदीस का आखिर टुकड़े से एक अहम नुक्ते का पता चलता है कि दीन में जो जितनी परेशानियां उठाएगा, अल्लाह के यहाँ उनका मकाम उतना ही ज्यादा ऊंचा होता चला जाएगा। हदीस का रही है, अगर तुम जान लो कि इन परेशानियों का क्या बदला है, तुम परेशान ही रहना पसंद करोगे नबी की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में।
तो गैरों को आइडियल बनाना ये बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक मामला है। और दौर हाजिर के मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों की मुश्किलात में से एक अहम मुश्किल ये है कि उनके शब रोज़ गुजारने के लिए जो तरीक़े हैं, जो आइडियल हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी में आइडियल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा उनकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है। इसी तरह से दौर हाजिर की मुश्किलात में से एक अहम मुश्किल कि दौर हाजिर के जो नौजवान हैं, चाहे मुस्लिम लड़के हो लड़कियां हैं, नशा के आदी हैं, ड्रग्स के आदी हैं। उन्हें नींद नहीं आती है, उन्हें चैन और करार नहीं आता है। मुस्लिम मुआशरे में अगर झांका जाए, देखा जाए, चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम नौजवान से हो या फिर आम मुसलमान से हो, चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम लड़कियों से हो या फिर आम खवातीन से हो, एक तबका ऐसा है जो शराब का आदी है, जो ड्रग्स का आदी है, जो जुए का आदी है, जो कि नशा आवर चीजों को इस्तेमाल करने का आदी है, जो बहुत सारे खुराफात करने का आदी है, हराम अमल करने का आदी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? एक हदीस से इसको समझते हैं। हदीस वान इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़िहिल उम्मति खस्फुन व मस्खुन व क़स्फुन फ़क़ाल रजुलुन मिनल मुस्लिमीन व मता ज़ाका या रसूलल्लाह क़ाल इज़ा ज़हरतिल क़ैनास वल मआज़िफ व शुरिबतिल ख़ुमूर रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिल फ़ितन। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस अब्वाबुल फ़ितन में मौजूद है। रावी हदीस जैसा कि पता चला हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत के अंदर धसा देने वाला अज़ाब आएगा, उम्मत मुहम्मदिया के अंदर चेहरा बिगाड़ देने वाला अज़ाब आएगा, उम्मत मुहम्मदिया के अंदर पत्थरों वाला अज़ाब आएगा। सहाबा सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना खतरनाक माहौल और इतना खतरनाक मामला कब होगा उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर? कहा 3 खराबियां आएंगी। इज़ा ज़हरतिल क़ैनात, जब गाने बजाने वालियां आम हो जाएंगी, गाने बाजे आम हो जाएंगे। ये बुराइयां हैं कि नहीं है? हैं। मज़ा नहीं आता है जब तक डांस नहीं देखते हैं, मज़ा नहीं आता है, नींद नहीं आती है जब तक हम गाना सुनते नहीं हैं, जब तक म्यूजिक से हमारा दिल न भर जाए मज़ा नहीं आता है। वल मआज़िफ, गाने बजाने के आलात जब आम हो जाएंगे, वह शुरिबतिल खुमूर, और जब शराब का पिया जाना आम हो जाएगा, ये जब 3 बुराइयां आम हो जाएगी, उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब आएगा, धंसा देने वाला अजाब आएगा, चेहरा बिगाड़ देने वाला अजाब आएगा, और उम्मत मुहम्मदिया पर पत्थर वाला अजाब आएगा। आज दौरे हाजिर की मुश्किलात जो नौजवानों के लिए है, चाहे उसका ताल्लुक मुस्लिम लड़कों और लड़कियों से है, वो ये है कि वो शराब के आदी हैं, वो ड्रग्स के आदी हैं, वो जुआ खेलने के आदी हैं, वो शराब पीने के आदी हैं, वो हराम कमाने के आदी हैं, वो हराम कमाने के आदी हैं, वो लॉटरी के आदी हैं। वो यूं ही कितने ऐसे मुसलमान हैं जो लॉटरी की वजह से, जुए की वजह से हराम कमाई में मसरूफ हैं, और इसकी बिना पर वो शराब के भी आदी हैं। हल क्या है? परेशान है लोग। हल क्या है इसके? बहुत सारे और असबाब हो सकते हैं, लेकिन उन असबाब को छोड़ करके हल क्या है? मुसलमान परेशान है, हल क्या है? आज मुस्लिम उम्मा की हालत यह है कि मुसलमान हर जाविये में परेशान है, और किसी भी कौम के लिए नौजवान उस कौम के अहम हिस्सा होते हैं, नौजवान उस कौम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। लिहाजा जब भी मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, इस्लाम पुकारता है कि मुस्लिम नौजवानों, अगर तुम्हें बुराई करने से फुर्सत मिल गई है, अगर तुम्हें शराब पीने से फुर्सत मिल गई है, अगर तुम्हें जुआ खेलने से फुर्सत मिल गई है, अगर तुम्हें अपनी जवानी को मस्तानी में गुजारने से फुर्सत मिल गई है, तो इस्लाम तुम्हें पुकार रहा है, इस्लाम के लिए अपनी जवानी कब कुर्बान करेंगे? जब भी इस्लाम के खिलाफ जहर उगला जाता है, जब भी इस्लाम को दबाने की कोशिश की जाती है,
اسلام کی جانب سے یہی آواز آتی ہے کہ مسلم نوجوانوں کہاں ہے تمہاری جوانی، مسلم نوجوانوں کہاں ہے تمہارے رگوں میں وہ غیرت والا خون، کہاں ہے؟ اسلام کو تمہاری جوانی کی ضرورت ہے، کہاں تم کھوئے ہوئے؟ علاج کیا ہے؟ اللہ سے قریب رہیے۔ پریشان ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، چین نہیں مل رہا ہے، آرام نہیں مل رہا ہے، ڈپریشن کے شکار ہیں، رات میں نیند نہیں آتی ہے، پتہ نہیں کیا کروں، قرآن حل بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ رعد آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا، جنہوں نے یہ جان لیا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کا معاملہ ہے، مرنے کے بعد میدان محشر کا معاملہ ہے، مرنے کے بعد جنت میں جانے کا معاملہ ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے۔ قرآن نسخہ بتاتا ہے، قرآن علاج بتاتا ہے کہ ہوٹلوں میں سکون تلاش کرنے والوں، قہوہ خانوں میں سکون تلاش کرنے والوں، شراب پی کر کے سکون تلاش کرنے والوں، جوا کھیل کر کے سکون تلاش کرنے والوں، نیند کی گولیاں کھا کر کے سکون تلاش کرنے والوں، اپنے وقت کو غلط جگہوں میں ضائع کر کے سکون تلاش کرنے والوں، مسجدوں سے دور ہو کر کے سکون تلاش کرنے والوں، فلم دیکھ کر کے سکون تلاش کرنے والوں، گانے سن کر کے سکون تلاش کرنے والوں، فحش کام کر کے سکون تلاش کرنے والوں، سکون کہیں نہیں ملنے والا ہے، نہ سکون کسی ہوٹل میں ملنے والا ہے، نہ سکون کسی شراب میں ملنے والا ہے، نہ سکون نیند کی گولی میں ملنے والا ہے، نہ سکون رب کو ناراض کرنے میں ملنے والا ہے۔ قرآن طریقہ بتا رہا ہے، قرآن نسخہ بتا رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں میں اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہوں سے توبہ کرو، رات کی تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کر کے رب کے سامنے آنسو بہانے کا طریقہ اپناؤ، سکون ملے گا۔ مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، سکون ملے گا۔ اذکار سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، سکون ملے گا۔ قرآن و حدیث سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، سکون ملے گا۔